Good morning, friends. Myself, Professor Bharat Basrani. Currently, we are dealing with second unit, Indian Contract Act 1872, in continuation of general contracts only. Today, friends, we are going to start with a new chapter, chapter 8. Today, we are going to start with chapter 8, and the name of the chapter is Discharge of Contract. The topic is discharge of contract, and the question is in on the screen now. This question is what we are going to discuss in detail today. Explain the different methods to get discharged from a valid contract. How the parties get discharged from a valid contract. There are various methods given in Indian Contract Act 1872. That is what we are going to discuss today. How the contract comes to an end and how party get discharged with the different methods is what we are going to discuss today in detail. Let's have its introduction first. Friends, we already know, we have already learned what is contract. Sir, we know very well what is contract. An agreement enforceable by law is contract. So what is the main essentials of valid contract? Sir, the main essentials for a valid contract is there must be an intention to create a legal obligation between the parties. The parties become liable to fulfill their respective obligations. So when such promises are performed, whatever the promises has been exchanged between the parties and the parties perform their promises, the contract is said to be discharged. The contract comes to an end. What exactly is the meaning of discharge of a contract? Say, for example, if in the university they ask you explain discharge of a contract, so that also has been presented in the topic, the introduction itself. The second para deals with that. The term discharge of a contract means that the party to it are no more liable under the contract. That is, there is a termination of the contractual relationship between the discharge of contract. In simple words, it is nothing. Whatever the promises has been exchanged between the parties, they fulfill their promises, they fulfill their obligations, they fulfill their responsibility. So they are now no more liable to perform under the contract. So there is no performance remaining from either of the parties. If such happens, the contract gets terminated. The relationship between the parties get terminated. So discharge of a contract puts an end to the contract and the parties subsequently are free from their mutual obligations. Let's have the modes, the methods, the ways, the means of discharge. A contract may be discharged in any one of the following ways. These are the methods about which detailed discussion is required to be made by the students in the examination. They are supposed to present one by one these methods in their answer. First one, how the party get discharged from a contract, how they are free from the contract, how they are free from their liability in future. Sir, by performance. The parties get discharged from contract by providing performance. So by performance, the parties get discharged from contract. By mutual agreement or consent, they get discharged from the contract. Third one is by impossibility of performance, they get discharged from contract. By lapse of time, by operation of law, and by breach of contract, they get discharged. So these are the 6 methods by which the parties, either of the one of the method can be followed, and as per that method, the parties get discharged from the contract. Let us have discussion one by one about these methods. Method number 1, sir. Discharge by performance. Already we have covered in previous session performance of contract. The same concept is applied over here also. That is section 37 and 38. We have already discussed in detail. But let's have its glimpses once again. शॉर्ट डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, शॉर्ट में डिस्कशन है, फिर भी मैंने एग्जांपल्स रखे हैं इसके बेसिस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो पहला तरीका क्या है पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में से छुटकारा पाने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए, टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होगा सर? सर जो वादा किया है निभा दो, जो भी प्रोमिसेस आपने एक्सचेंज किए सर निभा दो.
So the term performance means that the parties to the contract have fulfilled or carried out their respective obligations arising out of the contract. Arising out of the contract. The most natural, desirable, and usual mode of discharge of a contract is by performance. The performance may be either actual or it may be an attempted. It may be an attempted one. So the first method, sir, it deals with what, sir? It deals with performance. So by performance, the parties get discharged from the contract. Performance results or performance as a relation with what? Performance as a relation with whatever the promises has been exchanged between the parties. They are supposed to perform their promises. If they perform their promises, what will happen? They get discharged from the contract. If they fulfill their promises, if they perform their promises, they get discharged from the contract. So that is what is very, very important. If you want to get discharged through performance, you can get discharged like this way only. There are two methods in that case. There are two methods in that case, and that methods are roll number 45, Nirali. Leave the class right now. Roll number 45, Nirali. Leave the class right now. So the first method is discharge by performance, section 37 and section 38. The term performance means that the parties to the contract have fulfilled or carried out their respective obligations arising out of the contract. So whatever promises has been exchanged between the parties, they are supposed to fulfill their promises, their respective obligations. जो वादा किया है दोनों पक्षकार ने, दोनों को निभाना पड़ेगा. जैसे ही वो निभा देते हैं सर, दोनों ने परफॉर्मेंस दे दिया है सर, बोथ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. 90% इसी तरीके से डिस्चार्ज मिलता है. 90% यही मेथड सबसे ज्यादा फेमस है और यही मेथड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिलता है पार्टीज. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी आइदर एक्चुअल और इट मे बी अटेम्प्टेड वन. लेट अस हैव इट्स ब्रीफ डिस्कशन. इसके अंदर अब दो मेथड है. परफॉर्मेंस के अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्कशन करेंगे, मीन सेक्शन 37 के हिसाब से चर्चा करेंगे और सेक्शन 38 आएगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है सर? व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस and obligations arising out of the contract within the time limit prescribed and in the manner as per the terms of the contract.
then no liability remains outstanding on the part of any party and the contract get discharged. वही बात है, दोनों पार्टीज ने जो प्रोमिसेस एक्सचेंज किए होंगे, जो भी वादा किया होगा एक दूसरों के साथ, वो वादा निभा दिया सर। जो भी जिम्मेदारी उठाई थी, जो भी ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही थी सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से, जो टाइम लिमिट दी गई उस टाइम लिमिट के अंदर परफॉर्मेंस दे दिया सर, प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए सर, परफॉर्मेंस दे दिया सर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से, इन द मैनर इन विच इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो फ्यूचर में अब कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, नो लायबिलिटी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ एनी पार्टी। तो क्या होगा सर, आपने जो वादा किया था निभा दिया, जिस समय में बोला उस समय सीमा के अंदर निभा दिया, जिस तरीके से बोला उस तरीके से काम किया, आपकी तरफ से कोई कमी बाकी नहीं, कोई काम बाकी नहीं, ना आपकी तरफ से ना सामने वाले की तरफ से। नाइदर द प्रॉमिसर इज रिमेनिंग टू डू समथिंग nor the promisee is supposed to do. Both the parties have performed their respective obligations. In such way, through actual performance, the party get discharged from the. Let's have an example based on that. Remo, who is indebted to Ganesh for rupees 60,000, promises to repay the amount after 2 months. रेमो ने 60,000 रुपीज देने हैं गणेश को, लोन ली है रेमो ने, रेमो डेटर है और गणेश जो है क्रेडिटर है। रेमो प्रॉमिस करता है कि ये 60,000 रुपीज आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद मैं आपको ये पे कर दूंगा। इस तरीके की प्रॉमिस एक्सचेंज की गई है। सो रेमो रीपेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। जैसे ही 2 मंथ कंप्लीट होते हैं, 2 मंथ्स कंप्लीट होते हैं सर, रेमो ने जो 60,000 पे करने थे वो गणेश को पे कर दिए। यानी रेमो ने जो एक्ट करना था वो कर दिया, जो प्रॉमिस किया था, रेस्पेक्टिव प्रॉमिस दैट हैज बीन परफॉर्म बाय रेमो, और गणेश ने भी एक्सेप्ट कर लिया 60,000। तो दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉमिसेस जो शेयर की गई थी, जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुई थी सर, फुलफिल हो गई यहाँ सर। सो बोथ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है टेंडर। टेंडर हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा हुआ है टॉपिक। टेंडर का दूसरा नाम है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तीसरा नाम है ऑफर टू परफॉर्म। नाम याद रखना, नहीं तो एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे लिखना क्या है अंदर। सो टेंडर इज ऑल्सो नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म। When the promisor offers a valid tender to perform his contractual obligations, but the promisor refuses to accept it, then the contract is terminated and the promisor is discharged from his liability by such attempted performance or through tender. Promisor is ready to perform under the contract, लेकिन इस सिचुएशन में promisee जो है वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्टेंस करने से। प्रॉमिसर जो टाइम दिया हो उस टाइम के अंदर, जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से, जो क्वालिटी जो क्वांटिटी सारे इसके जो एसेंशियल्स है एज पर सेक्शन 38 जो हमने आगे चर्चा की, वो सब की सब एसेंशियल्स को फॉलो करके, सारी कंडीशंस फुलफिल करके परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है। लेकिन द प्रॉमिसी इज नॉट एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस, ही डिनाइज, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। तो प्रॉमिसर ने जो करना था वो उसने किया सर, उसने पूरी अटेम्प्ट की सर, पूरी कोशिश की परफॉर्मेंस देने की, लेकिन प्रॉमिसी ने एक्सेप्टेंस नहीं किया परफॉर्मेंस का, जिसमें प्रॉमिसर की तरफ से कोई कमी रह नहीं गई है सर। प्रॉमिसर वाज सपोज टू परफॉर्म व्हाट ही वाज सपोज टू परफॉर्म, ही हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन। प्रॉमिसर की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है सर, उसने सारी शर्तों के हिसाब से परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। सो इस सिचुएशन में क्या होगा सर, द प्रॉमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। प्रॉमिसर की यहाँ कोई गलती नहीं, प्रॉमिसर तो परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी था, प्रॉमिसर ने एक्सेप्टेंस नहीं, तो उसकी अटेम्प्ट से भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिसर हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज ऑफर्ड टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट द परफॉर्मेंस वाज डिनाइड बाय द अदर पार्टी, फॉर व्हिच प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पांसिबल एट ऑल एज पर सेक्शन 38। तो उस सिचुएशन में एक एग्जांपल रखा है, वो देखते हैं सर। अपू प्रॉमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू पप्पू। Appu takes the goods to the appointed place during business hours, but Pappu refused to take the delivery of the goods. पहले ये समझते अप्पू कौन है और पप्पू कौन है। अप्पू यहाँ पे कौन है सर, प्रॉमिसर। अप्पू इज प्रॉमिसर, पप्पू इज प्रॉमिसी, पहले ये समझना जरूरी। परफॉर्मेंस देने की बात हो रही है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कौन करने की कोशिश कर रहा है सर, अप्पू इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। जो जगह बोली गई, जिस समय में बोला गया उस समय में जितनी क्वांटिटी, जो क्वालिटी की चीजें बोली गई सर, वो अप्पू लेके पहुंच गया to provide the delivery of the goods, but the other person, the promisee, that is the Pappu, refused to take the delivery of the goods. अब यहाँ पे अप्पू की तो कोई गलती है नहीं,
Apu has done what he was required to do under the contract. So Apu get discharged with his attempted performance. यहाँ Apu get discharged. Apu को अब फ्यूचर में कभी भी वो गुड्स वापस देने की जरूरत नहीं है. एक बार अगर पप्पू ने मना कर दिया, मीन्स प्रॉमिस ने रिफ्यूज कर दिया टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जिसमें अप्पू की कोई गलती नहीं, प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं, उसने सारी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो रखी गई थी सबका फुलफिलमेंट किया, सबका पालन किया, सेटिस्फाई किया, लेकिन प्रॉमिस ने फिर भी रिफ्यूज कर दिया दैट आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. आप अपनी चीज वापस ले जाओ, मुझे आपका माल नहीं चाहिए, ऐसे रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया, जिसमें प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं है. तो प्रॉमिसर गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. तो ये पहली मेथड थी जिसमें सेक्शन 37 और 38 के हिसाब से आपने चर्चा करी. दूसरा मेथड आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसर्ट, सेक्शन 62 और सेक्शन 63 के हिसाब से. सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसकी डिटेल डिस्कशन इसके बाद के सेशन में होगी, नेक्स्ट सेशन में होगी. तो दो जन मिलके अगर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं म्यूचुअली, तो दो जन मिलके कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज भी हो सकते हैं म्यूचुअली, जॉइंटली, साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट का अंत भी लाया जा सकता है. When a contract can be made with the mutual consent, it can also be terminated with the express or implied mutual agreement of the same parties. So if the contract is cancelled or its terms are altered or a new contract or agreement is substituted, then in all such cases old contract stands discharged or terminated. अब इसमें तीन तरीके दिए गए हैं. आपको मुक्ति कैसे मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट में से सर? तो या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, पहली पोजीशन, पहली सिचुएशन, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया है सर, बात खत्म हो गई, परफॉर्मेंस देने की जरूरत ही नहीं है, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. या तो आपने टर्म्स अल्टरेशन किए हैं, जो भी टर्म्स रखी गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसमें कुछ चेंजेस करने की बात की है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट में से आपको मुक्ति मिल जाएगी. और न्यू एग्रीमेंट इज सब्सटीट्यूटेड, यानी पुराने की जगह नई आपने एग्रीमेंट कर ली, तो पुरानी एग्रीमेंट में से आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा. पुरानी एग्रीमेंट के हिसाब से अब आपने परफॉर्मेंस नहीं देना है, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से आपने परफॉर्मेंस देना है. सो ये सब सिचुएशन में म्यूचुअली दोनों बंदे तैयार होने चाहिए, दोनों का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है कि भाई शर्त हम चेंज करें तो दोनों रेडी होने चाहिए, भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ले तो दोनों एग्री होने चाहिए, कि हम पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट कर ले, दोनों तैयार होने चाहिए, दोनों का कंसर्ट होना बहुत जरूरी है, तो ही पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज मिलेगा. नए कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट तो बना है, उसके हिसाब से आपने आगे परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज किसमें से मिलेगा? पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से. A contract can be discharged by mutual agreement in any of the following ways. अब इसके अंदर कुछ 6 ऐसी मेथड्स हैं जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में रखी है, इसकी डिटेल डिस्कशन अगले सेशन में होगी, सेपरेट टॉपिक लेंगे इसको भी हम. तो यहाँ तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट करके जिसे कहते हैं नोवेशन एज पर सेक्शन 62, कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति मिलेगी. बाय अल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करके हमको पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. बाय रेसिशन, रेसिशन का दूसरा नाम है कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो एज पर सेक्शन 62, यू पार्टीज गेट डिस्चार्ज. रेमिशन एक पद्धति है, तरीका है, सेक्शन 63 लागू होता है, वेवर में भी सेक्शन 63 और एक्सटेंशन ऑफ टाइम आता है 6th वन. तो ये 6 तरीके हैं, इन 6 में से कोई भी एक तरीके से पार्टी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सेकंड मेथड था. थर्ड मेथड देखते हैं सर, व्हाट इज द थर्ड मेथड डीलिंग विथ. थर्ड मेथड इज नथिंग बट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी. तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, पर मुझे एक बात बता, तू इनका करेगी क्या? सर यहाँ बात आ जाती है इम्पॉसिबिलिटी की. दोनों जानते हैं अच्छे से कि सर ये एक्ट इम्पॉसिबल है, सेक्शन 56 इसी की चर्चा करता है. एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड. जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला वो सेक्शन 56 से ही जुड़ा हुआ है. एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड. तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, दोनों जानते हैं दैट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, और वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा. वॉइड एग्रीमेंट क्या है, हमने आगे पढ़ा हुआ है सर. एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट. तो ऐसी एग्रीमेंट्स करनी ही नहीं है जो हमको पहले से पता है सर इसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, तो ऐसी एग्रीमेंट करनी ही नहीं चाहिए. सर करोगे तो अभी क्या माना जाएगा? वॉइड है, हम लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते इसमें. Due to some reasons which are beyond the control of the parties, sometimes performance of a contract becomes impossible. कभी कभी ऐसे अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते सर, दे आर नॉट इन अवर कंट्रोल, और ऐसे इवेंट्स अगर हो जाए तो हमारे लिए वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो सकता है.
Under such circumstances, the contract is discharged if its performance becomes impossible. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब परफॉर्मेंस पॉसिबल होगा शायद, लेकिन बाद में ऑन द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस या ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। आपने मान लीजिए 15 सितंबर को किसी को वचन दिया हो गुड्स देने के लिए, लेकिन वो गुड्स ही आपके पास ही नहीं आया, तो आप दोगे क्या? यू हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स, you may not provide the delivery of the goods due to some reasons. That becomes impossible. Impossibility of performance may appear on the face of the contract or may arise after the contract is made. Impossibility of performance may appear on the face of the contract की फेस पे से ही जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तभी पता चल जाता है सर इसका परफॉर्मेंस देना इम्पॉसिबल। यहाँ हो सकता है लेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू वर्क, बाद में ऐसा पता चलता है कि सर इसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबिलिटी के दो तरीके हैं, प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है। वन बाय वन उसको अब उसकी हम चर्चा करें। प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है सर? It means impossibility at the time of formation of the contract, whether the fact of the impossibility is known or unknown to the parties, the agreement is void ab initio. इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही दोनों पक्षकारों को यहाँ पता होता है या दोनों में से किसी को भी नहीं पता हो, या शायद एक को पता हो दूसरा को नहीं पता हो, ऐसी कुछ सिचुएशन हो, तो सर वो इम्पॉसिबिलिटी की बेसिस पे एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। शुरुआत से ही वॉइड है, ऐसी एग्रीमेंट्स की कोई वैलिडिटी नहीं है, दे आर इनवैलिड। ऐसी एग्रीमेंट्स की कोई मायने नहीं रखते, कानून की नजरों में वो एग्रीमेंट हुई नहीं है ऐसा माना जाए। They are not agreements in the eyes of law. और ये फैक्ट, ये हकीकत दोनों पक्षकारों को पता हो सकती है इम्पॉसिबिलिटी की, या शायद दोनों को नहीं भी पता हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। द फैक्ट आइदर नोन टू द पार्टीज और दे मे नॉट नोइंग द फैक्ट्स एज एंड व्हेन दे आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखते हैं सर, ऋतिक एग्रीज विद प्रीति टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड नोन टू बोथ द पार्टीज। यहाँ दोनों पक्षकार को अच्छे से पता है कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिस हथियार से हम, ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है हमारे पास कि जिसकी मदद से हम जादू करके खजाना ढूंढ लें। ऋतिक एग्रीज विद प्रीति टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, जादू करके खजाना ढूंढ के लाने की बात हो रही है। ऋतिक के पास शायद जादू हो तो भी मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल क्या है, नामुमकिन है सर, दोनों अच्छे से जानते हैं ये सब नामुमकिन है। द एक्ट इज इम्पॉसिबल, द एग्रीमेंट इज वॉइड, दोनों को पता है, नोन टू बोथ द पार्टीज, द एक्ट इज इम्पॉसिबल, बोथ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज। ये एग्रीमेंट हुई है न हुई के बराबर है। उसी तरीके से अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पक्षकार को मालूम ही नहीं है कि एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उनको पता ही नहीं होता है कि जो एक्ट उन्होंने करना है, जो परफॉर्मेंस उनको देनी है सर, इट्स इम्पॉसिबल। अनुराग एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स नेम्ड वीरा टू बासु फॉर ₹40,000। अनुराग एक घोड़ा बेचने की बात कर रहा है, घोड़े का नाम वीरा रखा है और वीरा है, और वो बासु को सेल करने की बात कर रहा है 40,000 में। अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों को पता नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, दोनों को नहीं पता है दैट द हॉर्स डाइज। अननोन टू बोथ द पार्टीज, द हॉर्स डाइज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों को पता ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वीरा जिसकी बात हो रही है परचेसिंग और सेलिंग की, जिसकी प्रोमिस की जा रही है, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो चुका है सर, यूं समझ लीजिए, द सब्जेक्ट मैटर इज नो मोर। वो हॉर्स ही नहीं रहा है सर, तो देंगे क्या? डिलीवरी किस चीज की देंगे सर? वीरा नहीं रहा है, वीरा की जगह बादल होगा चलेगा, शेरा होगा चलेगा, लेकिन वीरा चाहिए तो वीरा तो है नहीं। दिस एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड ड्यू टू म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों को हकीकत के बारे में पता नहीं था। तो म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर ये एक एग्जाम्पल बेस्ड था, जिसकी मदद से दोनों को सब्जेक्ट मैटर की हकीकत नहीं मालूम थी, फैक्ट नहीं मालूम थी, दोनों की तरफ से मिस्टेक हुई है सर। अननोन टू बोथ द पार्टीज, जो चीज की शेयरिंग करनी है, एक्सचेंज करना है सर, जिसके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड है, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा है, तो परफॉर्मेंस कहां से देगा? सो एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। ये पहली मेथड की चर्चा की, इसके अंदर हमने प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब दूसरी मेथड पे आ रहे हैं इम्पॉसिबिलिटी की, सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इम्पॉसिबिलिटी विच अराइजेस सब्सिक्वेंट मींस लेटर ऑन टू द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसका टेक्निकली डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का नाम भी दिया गया है। ये अलग से टॉपिक एक चर्चा करेंगे हम बाद के सेशन में।
If the contract was capable of performance at the time of making it, but later on, due to the happening of some event, the performance becomes impossible or unlawful. आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त परफॉर्मेंस पॉसिबल था, बट लेटर ऑन ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी, मान लीजिए 1 सितंबर को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वक्त पे अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए बोला जाता तो उस वक्त पॉसिबल था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की ड्यू डेट 15 सितंबर को रखी गई हो, तो 15 सितंबर से पहले कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हम अब परफॉर्मेंस देना भी चाहे तो ना दे सके, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। तो वहां पे द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सिचुएशंस कौन कौन सी होती है जहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब पॉसिबल था लेकिन लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल, ये सिचुएशंस कौन कौन सी है तो वो समझाने की कोशिश की। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो इसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। आप परफॉर्मेंस देना चाहते हो लेकिन आपके हाथ में ही नहीं है, इवेंट इज अनकंट्रोलेबल। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल लिया था कि वीरा की डिलीवरी देनी है, वीरा के ऊपर द सब्जेक्ट मैटर वाज द हॉर्स वीरा। अब वीरा ही नहीं रहा तो आप क्या दोगे सर, परफॉर्मेंस वीरा ही चाहिए उसको, तो वीरा तो रहा नहीं सर, शेरा है, बादल है, यानी दूसरा कोई भी हॉर्स दे सकते हैं लेकिन वीरा नाम का हॉर्स ही इज नो मोर, ही डाइज। तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो आप डिलीवरी क्या दोगे उसको। फिजिकली इम्पॉसिबल, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, आपने किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और आपने 15 सितंबर को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन मान लीजिए जिस बंदे ने मिस्टर एक्स ने पार्टिसिपेट करना है उसको पाँव में फ्रैक्चर हो जाए तो अब क्या डांस करेगा, फिजिकली इम्पॉसिबल है। वैसे ही लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन हो सकती है, यहाँ वॉर डिक्लेयर हो जाए दो देशों के बीच में तो आप परफॉर्मेंस देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। तीन मेथड की डिस्कशन हुई, पहली मेथड थी